Namaste, Jai Hind and welcome, ladies and gentlemen. We're coming to you from the capital city of Uttar Pradesh, Lucknow, on a day when Prime Minister Narendra Modi filed his nomination from Varanasi. It was yet another huge show of strength, steeped in spirituality. He's committed himself to Kashi Dham or to the city of Varanasi. It's a day when it's also politically charged in Amethi and Raebareli, with Priyanka Gandhi Vadra going hammer and tongs at Smriti Irani. Rahul Gandhi also getting active in Raebareli and thereabouts. There is a lot of political heat. Akhilesh Yadav is busy trying to campaign and up the chances of the INDA alliance, and more importantly, the Samajwadi Party. What's going to be the score of the BJP in Uttar Pradesh out of the 80 seats amidst all of this? Prime Minister Narendra Modi also speaking to the News 18 network with Rubika Liaquat and opening up on 2002, perhaps for the first time, pouring his heart out and saying that Sabka Saath, Sabka Vikas, this spirit was what he was brought up in, because his neighbors were a Muslim family participating in Eid, celebrating in Eid, and also going under the Tazia was something which was a norm as families. But what did 2002 and thereafter do to him, and the perception built around him, and how he viewed the Muslim Samaj or the Muslims in Bharat? Now, big questions, plenty of issues to talk about. We've got our panel here. Let's go straight across to Anand Dubey, who's a spokesperson of the BJP, joining us. Namaste, Anandji. We also have Amit Jamai of the Samajwadi Party, Vivek Bansal, leader Congress, and Sabiha Ahmed, activist. Aap sabko namaste. Thank you very much. So let's take the bull by the horns, straight up. Pradhan Mantri Narendra Modi सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास की बात करते हैं, सबका विश्वास की बात करते हैं. आज उन्होंने जो कहा गोधरा के बारे में, और कहा कि किस तरह से वो तो सबके लिए काम करते हैं, किसी एक के लिए नहीं. बात 140 करोड़ भारतीय वासियों की करते हैं. बट अगर हम काशी की बात करें तो काशी में तो भोले बाबा थे, भगवा था, हिंदुत्व था. आप इसको कैसे देखती हैं? हाउ डू यू सी दिस? मैं इसको एक भारतीय नारी की तरह देखती हूँ, एक सिटीजन ऑफ इंडिया, कि अगर कोई एक नारी है या कोई पुरुष है जो भी है, तो वो अगर देश की सड़कों पे चल रहा है या देश में पानी पी रहा है या कोई भी काम कर रहा है, तो वो सबके लिए बराबर है. यदि देश की सड़कें बनती हैं, नेटवर्क अच्छा होता है, तो उसका लाभ सब उठाते हैं, तो वो चाहे किसी भी धर्म जाति का हो. अब रही बात कि वो बनारस में क्या प्रमोट कर रहे हैं या कोई भी कहीं पर क्या प्रमोट कर रहा है, ये उसका एक निजी भी हो सकता है या फिर समय की मांग हो सकती है. लेकिन मैं एक जनता की नागरिक हूं, और नागरिक के एवज में मैं कहना चाहूंगी कि कोई भी अगर लाभ पहुंचते हैं नागरिकों को, तो सभी को पहुंचते हैं. But Sabhi ji, I want to ask you, if a practicing Muslim can offer namaz 5 times a day and go to the prayer, go to the masjid for prayer, and that's all right. So can a practicing Hindu not practice their faith? Should that be seen from a political prism? And for you personally as a lady, has the Prime Minister in his policies, in his actions, differentiated on the basis of religion? See, my point is कि why we need to add any kind of prime minister or chief minister for these personal reasons, when we are following a religion that is entirely personal. There is no need for any prime minister's ideas or any chief minister's ideas. We need to follow a religion in our premises. That is an extremely personal thing, and it should be done in a personal manner. We need not to propagate it. We need not to do any kind of propaganda for it. This is something between you and your God, your Almighty God. You are answerable to that only. So I strongly feel that we should not give any kind of emphasis or any importance to these kind of factors. If some people are promoting it because of their own personal reasons, we need not to get influenced by those reasons. We should focus only and only on development. See, Anand, I believe anything which is anti-development, I strongly feel it is anti-national. So we just need to focus on development. If development is there, our children are going to get benefit. Our sisters are going to get benefited. So we just need to work on, see the development procedures, and we are not blind. All of us have this much of common sense. We can observe things going around us, how much development is there or how much development is not there. Are people happy? Are people not happy? Everything is so much obvious. So we need to read those things rather than reading between the lines. Rather than reading between the lines. So faith is personal. Look at the development. Development, if there are roads are built for everybody, and it does not differentiate. Roads don't differentiate, infrastructure doesn't differentiate, welfare doesn't differentiate. But Vivek Bansal ji, the difference in the rallies is something which has been spoken about. Rahul Gandhi's entry into Raebareli was so quiet, and Prime Minister Narendra Modi seeking a repeat mandate from Varanasi.
there was so much of fanfare, so much of pride, and there was so much of elation. There's a difference is very stark. Do you agree, disagree? First of all, let me say that there is some people tend to do things with great fanfare and as an event is there. And let me tell you about our leader, Mr. Rahul Gandhi. He's a person who believes in doing things. And he doesn't go for, for razzmatazz or something of this sort. He's creating, sensation and all. So first of all, I would like to tell you that there is no significance in this, except for the fact how you judge it, what is your perception about it. So Rahul ji went there, and he has a connection over a period of time, generations connectivity with the people of Rae Bareli and Amethi. So he has gone there, particularly after Madam Sonia Gandhi had, because of her health reasons, she had sought, sort of retirement from electoral politics. And so on that account, that to keep that connectivity with the voters of Rae Bareli, but why wait till the last minute then? Because she became a Rajya Sabha member quite some time back. If he was so keen on Rae Bareli, he could have announced it before and he could have cultivated it. Anand, let me tell you. There is this whole aspect of reluctance that is evident from the Congress. And there is this whole thing about how Prime Minister has done so much for Kashi, the transformation that's happened. Anand, let's not attach motives to it or meaning to it or just trying to be that what could have been the reason. You see, he's a leader of the party who was taking the campaign by himself, and particularly he was contesting from Wayanad. So there were two thoughts, there were different opinions in the party that you should field somebody and all. So ultimately he decided that I owe it to the voters of Rae Bareli on account of the connectivity of our family for generations together. He decided No, but what is that the Gandhi family has to write home about that their contribution to Rae Bareli? If the Prime Minister can come back and say, this is what I do, you can go and do a dipstick, call anybody up in Kashi and say, what has Prime Minister Narendra Modi done in the last 10 years for Kashi? What has the Gandhi family done for Rae Bareli in the last 15, 20, 30 years that it's been their bastion? You see. Except for give them reluctance that whether they even want to contest from Rae Bareli. You see, Anand, let me just say one thing. We cannot be judgmental that the people of Rae Bareli are going to decide, and he has done a lot. Public sector undertakings and all which had come, and for last 10 years we had not been in power. So before that, what all Rae Bareli had been getting in form of government institutions or funds being pumped in over there, that is for everybody to say. I cannot just start, enumerating them that this all has been done. And let me tell you, ultimately it is the people's verdict. What the people feel. You and me can keep on saying that what have they done and this and that, but ultimately the people have to give their verdict. People need to see whether they still want to remain connected. Rahul Gandhi is not fighting in Amethi. Priyanka Vadra just saying that Smriti Irani came to Amethi only to defeat Rahul. On the one hand, you tend to say that, see, family is ruling and all. Unlike other leaders, he has decided. It was his verdict that he decided that only one person should contest. So instead of appreciating that, had she contested, then you would have said, or Mr. Modi would have said this, family dynastic politics nahi chalega is desh mein ye. So this instead of appreciating that, you are just raising a finger on that. You want to respond because Priyanka Vadra has just said that Smriti Irani's only agenda to come to Amethi was to defeat Rahul. She had no other love or affection for Amethi. देखिए, इन्होंने अभी आपने जो प्रश्न पूछा, प्रधानमंत्री जी ने नामांकन किया, काशी की सड़कों पर आपको आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए जो प्रेम दिखा, जो उत्साह दिखा, वो इसलिए नहीं दिखा कि नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री हैं। वो इसलिए दिखा क्योंकि उन्होंने अपने कार्य पद्धति से, अपने कर्मों से जो काशी में किया है, जो काशी उसको महसूस कर रही है, इसलिए उनको ये सम्मान मिला। कहा ना, तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं गोत्र बतलाकर, पाते हैं जग में प्रशस्ति अपना कर्तव्य दिखलाकर। तो नरेंद्र मोदी जी ने काशी को काशी बनाया, वरना मैं वो बगल का ही रहने वाला हूं, काशी से थोड़ी दूर का। काशी की गलियां टूटी हुई थी,
सीवर प्लांट का कोई काम नहीं था जी। आपको बता दूं, ये लहरतारा पे एक फ्लाईओवर बना था, मायावती जी की सरकार ने पास किया, मुलायम सिंह जी की अखिलेश जी की सरकार आई, चली गई, नहीं बना, हमने बनाया। जी। रामनगर को जोड़ने वाला पुल मुलायम सिंह जी ने उसका शिलान्यास किया था और वो ऐसे छोड़ दिया, बजट नहीं दिया, हमारी सरकार ने पूरा किया। रिंग रोड हो वहां पर, या जो फ्लाईओवर बने हो, या स्टेडियम बन रहा है, जो भी चीजें हुई हैं काशी में, काशी विश्वनाथ का भव्य कॉरिडोर बना है, ये हमारी सरकार ने किया। पिछली सरकारों ने काशी को, अयोध्या को, मथुरा को उपेक्षित रखा, क्योंकि इन्हें लगता था कि अगर यहां कुछ कर देंगे तो हो सकता है खास वोट बैंक हमसे नाराज हो जाए कि भाई अयोध्या में क्यों कर रहे हैं, काशी में क्यों कर रहे हैं, ये वजह है। तो एक तरफ एक व्यक्ति है जिन्होंने अपने कर्म से अपनी पहचान बनाई और काशी की जनता उनका स्वागत कर रही है। दूसरी तरफ राहुल गांधी जी हैं जिनको अमेठी की जनता ने भगा दिया। भागे तो वायनाड जाके गिरे। वायनाड पहुंचने पर उन्होंने क्या कहा, आपको उनका बयान याद दिलाता हूं। उन्होंने कहा उत्तर भारत के लोगों की सोच जो है वो सतही है, यहां के लोगों की सोच गंभीर है। उन्होंने चुनाव हारने के बाद उत्तर भारतीयों का अपमान किया, फिर रायबरेली के लोगों को धोखे में रखा, वायनाड के लोगों को धोखे में रखा। जब राहुल गांधी जी को लगा कि वायनाड से मेरी कुर्सी खतरे में पड़ने वाली है तो भाग के रायबरेली आए। तो एक तरफ वो व्यक्ति है जो जनता के दिल में स्थान बना रहा है काम से, दूसरा व्यक्ति वो है जो भाग रहा है एक जगह से दूसरी। प्रियंका वाड्रा जी कहती हैं कि सीखना मेरे पिताजी से चाहिए था, मेरे पिताजी तो पैदल चलते थे, पदयात्रा करते थे, यहाँ पीएम तो गाड़ी के ऊपर बैठ के ये किस तरीके का रोड शो हुआ कि आप गाड़ी के ऊपर खड़े होकर सबको बाय बाय कर रहे हैं। उनके परिवार के लोग तो सरकारी जहाज पे छुट्टियां मनाने भी चला जाया करते थे और पता नहीं उनके परिवार के लोग क्या क्या करते थे, मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूं। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी को काशी की जनता नहीं, देश की जनता प्यार करती है। वो जहां जाते हैं, रोड शो अगर करते हैं तो लाखों लाख की संख्या में लोग आ रहे हैं, उनको देख रहे हैं, उनको सुन रहे हैं। और जहां तक बात रहे, मैं एक चीज और बता दूं आपको, अमेठी, जिस अमेठी से राहुल गांधी रहे, अमेठी में डीएम की जो ऑफिस थी वो एसडीएम के ऑफिस में चला करती थी, एसपी की थाने में चला करती थी, ककवा में फ्लाईओवर नहीं था, एक बाईपास रोड थी, वो 30-35 साल से उसकी मांग चल रही थी, कोई काम नहीं हुआ, सड़कें तक नहीं थी गांवों में। लेकिन जब से हमारी सरकार आई, हमने वहां फ्लाईओवर भी बनाया, बाईपास भी दिया, कलेक्ट्रेट भी हमारे ही समय में बन रहा है, वहां जेल भी हमारे ही समय में बन रही है। इसके अलावा असॉल्ट राइफल की फैक्ट्री भी बनी है, कोको कोला का प्लांट भी है और तमाम चीजें बताने के लिए। लेकिन जिन लोगों के आंखों पर सिर्फ विरोध की पट्टी चढ़ी हुई है, उनको कुछ नहीं दिखता। और हां, रायबरेली का एम्स भी हमने ही कंप्लीट कराया। अच्छा, रायबरेली का तो अमेठी रायबरेली पे काम जो किया बीजेपी ने किया, लखनऊ में जो भी काम हो रहा है वो बीजेपी ने किया, अमित जमाई सपा ने क्या किया? वेयर इज द समाजवादी पार्टी amidst ऑल ऑफ दिस? आनंद जी, अखिलेश took his time to decide on कन्नौज। सबसे पहली बात यह है, काशी से हमारे वजीर आजम जीतकर देश के जो है उन्होंने कमान संभाली। उन्होंने कहा कि मैं मां गंगा की गोद में जैसे मैं बैठा था, मैं उनकी गोद में हूं, उन्होंने मुझे गोद लिया था। लेकिन मां गंगा 18,000 करोड़ नमामि गंगे का भ्रष्टाचार के निशाने पे लगा और मां गंगा जी आज भी साफ नहीं हुई। आप वाराणसी चले जाइए। दूसरी बात, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि जब वो दिल्ली पहुंचेंगे तो पहला जो उनका सबसे बड़ा फैसला होगा देश का, वो मुल्क के नौजवानों के लिए 2 करोड़ सालाना नौकरी का होगा। सालाना नौकरी मिली। हमारे देश के जो किसान हैं वो समाजवादी, भाजपाई, बसपाई या कांग्रेसी नहीं है। देश के किसानों से हमारे वजीर आजम ने दिल्ली में हजारों किसान अपने एमएसपी के लिए उन्होंने जाने गंवाई। प्राइम मिनिस्टर ने जो एमएसपी का वादा किया वो इस देश के किसानों के साथ विश्वासघात किया। प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि वो इस देश में जो एमएसएमई है उसका वो उद्धार कर देंगे। राइट। हमारे उत्तर प्रदेश में 12,000 एमएसएमई सिर्फ कानपुर में बंद हो गए। ये जो डबल इंजन की सरकार है ना, एक इंजन तो आपको उत्तर प्रदेश में दिख ही नहीं रहा है। किसी भी आप होर्डिंग पोस्टर में चले जाइए, 2 फोटोग्राफ दिख रहे, हमारे मुख्यमंत्री जी उसमें कहीं पे भी नहीं है। राइट। दूसरी बात यह है कि जो वादे, जब हम चुनाव की बात करते हैं तो हम इश्यूज की बात करते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी जी वजीर आजम हमारे देश को एक पेरामोडियल एरा में ले जाने की बात करते हैं। हम चाहते हैं कि जो आदरणीय अखिलेश यादव जी और राहुल जी जो सवाल कर रहे हैं कि जातिगत जनगणना से आपको समस्या क्या है, 2 करोड़ नौकरी का क्या हुआ,
किसानों का एमएसपी का क्या हुआ? इसका जवाब हमारे वज़ीर-ए-आज़म के पास नहीं है। आप जानते हैं वो किस तरह की हेट स्पीच, मुसलमानों के खिलाफ किस तरह की स्टेटमेंट दे रहे हैं। बट आज तो जो उन्होंने दिख कहा रहा कि है, ये कि एक धारणा बनाई गई जो है। दिख रहा है कि He- जो 400 का नारा था उसमें 4 माइनस हो But गया। he said very clearly when he spoke with News 18 today that it is a perception that's created. That's not how he is. That's what he said. नहीं, हम ये उन्होंने तो कहा कि 2002 के बाद, गोधरा के बाद मेरा नाम जानबूझ के खराब किया गया. आई एम नॉट लाइक दिस. दैट्स व्हाट ही स्पोकन. मैं ये कह रहा हूं कि इस And he देश never में meant he said घुसपैठिया and he आप didn't छोड़िए, mean आप छोड़िए, हिंदू मुसलमान छोड़ दीजिए आप। हाँ. 80 करोड़ लोग भारत के, यूपी 1 में कहा जाता था कि तकरीबन 40 करोड़ लोगों को राशन मिलता है। Right. एक सरकार जो हिंदुत्व के नाम पर आई, राष्ट्रवाद के नाम पे आई, उग्र राष्ट्रवाद के नाम पे आई, हम ये पूछ रहे हैं कि 80 करोड़ भारत के लोग राशनों के लाइन में लग रहे हैं। ये शर्म की बात नहीं है? शर्म की बात. ये बहुत ही We're going to hold this there. खूबसूरती की बात है। Amik Jamai raising a few points. Anand Dubey's rebuttal after a very, very short break. Just stay with us. Stay with us. Back on, ladies and gentlemen, the debate was just heating up. Amik Jamai is saying one of the two engines is missing in Uttar Pradesh. Then he's also turned around and said MSMEs in Kanpur have shut down. Where is the Vikas that was spoken about? It's all a big, big balloon. Amik Jamai, आप यही कह रहे थे? मैं बिल्कुल यही कह रहा था कि अब आप लॉ एंड ऑर्डर पे उत्तर प्रदेश में आ जाइए। भारत में रेप में नंबर 2 पे एनसीआरबी का डाटा है, हमारा समाजवादियों का डाटा नहीं है। आप ब्राह्मण्स का पूरे उत्तर प्रदेश में, जो पहले हम समझते थे कि मुसलमानों का फेक इनकाउंटर में किलिंग होता है, ब्राह्मण्स का सबसे ज्यादा जो फेक इनकाउंटर में किलिंग उत्तर प्रदेश में हुआ। हाई कोर्ट ने संज्ञान में लिया, सुप्रीम कोर्ट तक पूरा मामला गया। कितनी बार नोटिस उत्तर प्रदेश की सरकारों को मिली? हम ये पूछ रहे हैं कि आप क्षत्रियों के बारे में, भारतीय जनता पार्टी के एक एमपी हैं और प्राइम मिनिस्टर के दोस्त हैं मिस्टर रूपाला, वो ये कहते हैं क्षत्रियों के बारे में कि उनकी जो बेटियां हैं और जो बहुएं हैं, ये जो हैं अंग्रेजों और मुगलों के साथ कंप्रोमाइज करती थी। और उनका मांग था क्षत्रियों का पूरे उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, राजस्थान में, गुजरात में, कि प्रधानमंत्री माफी मांगे, भारतीय जनता पार्टी उसको पार्टी से निकाले। लेकिन कोई एक्शन उसके ऊपर नहीं हुआ। तो सवाल यह है कि आप किसके लिए आए थे? आप आए थे, आपने कहा कि आप मां गंगा की गोद में हैं, आप देश के कॉर्पोरेट फोर्सेस की गोद में थे। आपने 10 साल 20 घंटे जो आप जागे हैं, इस देश के पूंजीपतियों, उनके हितों की रक्षा के लिए जागे। इसीलिए हमारे देश के 40% भूभाग पे इन कॉर्पोरेट फोर्सेस का कब्जा है आज की डेट में। और 80 करोड़ हिंदू, 80 करोड़ हिंदू देश में राशनों की लाइन में लगा हुआ है। 40% 40% भूभाग पर कब्जा लास्ट मैंने जब देखा था तो वक्फ बोर्ड का था, कॉर्पोरेट इंडिया का नहीं था। आप वक्फ बोर्ड के बारे में कुछ नहीं जानते। दूसरे मैं तो नहीं जानता। वक्फ बोर्ड के बारे में आपको जीरो पता है। बिल्कुल, वक्फ बोर्ड की जमीनें पर्सनल प्रॉपर्टीज होती हैं जो सरकारों को दी जाती हैं। सरकार उसकी मुहाफिज होती है जिसका वो किराया लेती है। मैं आपको कह रहा हूं कि भारत सरकार, भारतीय सेना, उसके बाद तीसरे सबसे ज्यादा जो है वो एक वक्फ बोर्ड के पास है। लेकिन आपने जो एक कहा कि देखिए मुस्लिम से ज्यादा ब्राह्मण उस पर अटैक हुए और उनके एनकाउंटर हो रहे हैं, तो फिर ये जो कि ये जो करंट सरकार एक पर्टिकुलर समुदाय विशेष के खिलाफ है, वो नैरेटिव तो फेल हो गया। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर पे है कि आप आए दिन खुलेआम जो आपको पसंद है उसको ढोक रहे हैं। आनंद दुबे बोलिए, रेप्स में नंबर 2 एंड आए दिन खुलेआम जिसका मन किया उसको ठोक दिया। देखिए अमीक जमाई साहब जो हैं, हाँ जी, वो पूरी तरह से मुझे लग रहा है कंफ्यूज है। गंगा से शुरू हुए और गंदगी में आके फंस गए। इन्होंने अपनी बात गंगा से शुरू की और गंदगी में आके फंस गए। जब उनका ये कहना है कि गंगा साफ नहीं है, गंगा में भी गंदगी है। मैं वही बता रहा हूँ। हमारे जो डीजीपी हैं उत्तर प्रदेश के, वो कूड़े नहीं है, अच्छा वो गंदगी नहीं है। अरे सुन लीजिए, वो जो तस्वीर आपने जिस जातीय गंदगी की बात की, अभी मैं आपको बता रहा हूँ। जब विकास दुबे का एनकाउंटर होता है एक अपराधी का, तो उसको ये ब्राह्मण बताने की कोशिश करते हैं।
जब अतीक अहमद का इनकाउंटर, अतीक अहमद मारा जाता है या मुख्तार अंसारी की जेल में मृत्यु होती दुबे है, जी, आप अपने सुन लीजिए, समाज के लिए नहीं बोल पाओगे। उनको बोलने जितिन दीजिए। प्रसाद आपके मंत्री अरे हैं। सुन लीजिए एक भाई मैसेज साहब, करिए, सुन लीजिए भाई एक मैसेज साहब, करिए, ब्राह्मणों का भी सुन डाटा आपको भेज लीजिए, देंगे। सुन लीजिए। आप नहीं बोल आप सकते ब्राह्मणों भारतीय की जनता चिंता पार्टी मत में। करिए। नहीं, आप ब्राह्मण- जिनकी सरकार आप में नहीं बोल कहा सकते। जाता था, नहीं, अमित, जिनकी सरकार में एक- अखिलेश उनको यादव जी बोलने कहते दीजिए। थे कि ब्राह्मणों का अमित जी, काम नहीं करना है, उनको बोले दीजिए। आप ब्राह्मणों की ठेकेदारी करेंगे। नहीं, जितिन एक- प्रसाद आप ब्राह्मणों की बात मैं करेंगे। आप दोनों से एक बात जिनके पूछना समय में चाहूंगा। ब्राह्मणों की हत्याएं की नहीं, जाती नहीं, थी। इनसे पूछिए आप बात जितिन कर रहे हैं। प्रसाद मैं आपसे- कौन सा आंदोलन मैं कर आपसे- रहे थे? आप मैं आतंकवादियों के आपसे- मुकदमे ब्राह्मण वापस लेने मैं आप वाले हैं। दोनों से एक प्रश्न पूछना, धर्म के नाम पे आप एक मिनट, आतंकवादियों एक के मिनट। मुकदमे मैं आप वापस लेते सबसे हैं। एक प्रश्न पूछना चाहता Law हूँ। and order, I'm talking about सुनिए law and order. सुनिए फटकार सुनिए, लगाई। वन मिनट। अपराधी को टेररिस्ट, जाति और धर्म से जोड़ने का हाँ, काम समाजवादी अगर पार्टी अगर करती अगर है। अगर टेररिस्ट की कोई जाति धर्म आनंद नहीं जी, होनी आनंद चाहिए जी, तो आनंद जी, क्रिमिनल क्या की ये भी सच कोई नहीं जाति है? धर्म नहीं होनी क्या चाहिए। ये सच नहीं है क्रिमिनल कि क्रिमिनल है आतंकवादियों के जी। मुकदमे वापस लेने के लिए जितिन अखिलेश यादव की प्रसाद- सरकार हाईकोर्ट तक गई हाँ। और हाईकोर्ट ने फटकार लगाया, कहा अगर आपका बस जले तो आप इनको पद्म पुरस्कार दे दें। ये हाईकोर्ट की टिप्पणी है। जितिन देश प्रसाद में सर्जिकल स्ट्राइक के हाँ, खिलाफ हाँ, सबूत हाँ, मांग रहे हाँ। हैं, यहाँ वोट जिहाद की बात कर रहे दुबे जी, हैं। आप परेशान मत होइए, मैं जानता हूं आपकी मजबूरी है। नहीं, मैं परेशान नहीं जितिन हूं, परेशान प्रसाद- आप हैं। जितिन प्रसाद ब्राह्मण परेशान समाज आप के हैं। बड़े नेता हैं, हाँ, ब्राह्मण महासभा के बहुत बड़े चेहरा हैं। वही आंदोलन चला रहे थे, ब्राह्मण बचाओ आंदोलन, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में। हाँ। डाटा मंगवा लीजिए। अगर मैं गलत हूं तो मुझे देखिए, इस चौराहे पे टांग दीजिएगा। समाजवादी पार्टी के सवाल ये पास है कि ये जातियों के सरकार अलावा कुछ नहीं है। और जातिवादी इनकी सरकार, अपनी सरकार में और जातिवादी 7 कैबिनेट मंत्री अखिलेश यादव जी की सरकार में सिर्फ एक जाति से थे। पूछिए गलत बोल रहा हूं या सही बोल हमारे रहा हूं? विधानसभा के नहीं, अध्यक्ष पर एक- सात- मैं सात- मैं आप एक ही सबसे परिवार मैं में आप 5-5 देखिए लोग, 6-6 लोग चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए अगर आप ये अगर जातियों आप की बात अगर कर आप रहे हैं। अच्छा एक मिनट, थोड़ा एक अल्प विराम। अगर आप अच्छा, लोग न्याय पे बात एज कर एज पॉलिटिकल पार्टीज, तो अगर आपका बात मेरी बोल तो दिया मैंने। एज अ वोटर, एक सामान्य वोटर, एक सामान्य व्यक्ति के आप मेरिट पे बात कीजिए, आप विषय पे बात कीजिए, मुद्दे पे बात आनंद जी, कीजिए। मैं NCRT जैसे पे ही बात आप कर रहा हूं। जातिगत जितिन राजनीति प्रसाद पे खेलना बात कर करते रहा हैं, हूं। यानी कि देखिए, आप बांट ये की वो लोग राजनीति कर हैं, रहे हैं। चाहे ये वो आप लोग करें, हैं, चाहे आप करें, चाहे आप कांग्रेस करें, पार्टी जो भी को कर रहा लेना है, चाहिए। जैसे ही आप जाति समाजवादी समुदाय लोग विशेष हैं, पे आ जाते हैं तो फिर आप बांट की काका राजनीति कर रहे हैं। रिपोर्ट हो, बीजेपी के मंडल एमपी ने जो कमीशन बोला, की सिफारिशें हो, बीजेपी के एमपी ने सबको बोला, रोक के रखने वाला काम कांग्रेस पार्टी ने किया। आप राजीव गांधी का भाषण उठाइए जब उन्होंने ओबीसी आरक्षण के समय दिया है और कितना विरोध किया उन्होंने। और छोड़िए, यही समाजवादी पार्टी थी। अखिलेश यादव की सरकार ने 2 लाख दलित भाइयों के प्रमोशन में रिजर्वेशन को छीनकर उनको रिवर्ट करने का काम किया। यही समाजवादी पार्टी है जिसने बाबा साहब भीमराव मुझे अंबेडकर इसका जवाब को देना। आजम खान ने भूमाफिया बताया हज हाउस के उद्घाटन कार्यक्रम में गाजियाबाद में, और अखिलेश यादव जी ताली बजाते रहे। यही दलित भाइयों की जमीनें कब्जा होती रही। ये समाजवादी पार्टी के लोग बात करेंगे तो यानी जो देखिए, गुंडे माफियाओं की पैरवी करते हैं, देखिए, जो अतीक अहमद के कुत्ते पे जाके इलाहाबाद में हाथ मिलाते हैं। अच्छा रुक जाइए। देखिए, कानपुर में एक ब्राह्मण बेटी और मां को जिंदा जला के बुलडोजर चला दिया गया। कोई ब्राह्मण नेता नहीं बोला। आदरणीय मुख्यमंत्री एक मिनट बुलंदशहर में जातिवादी आनंद जी, एक और मिनट बेटी आनंद जी, का एक मिनट रेप आनंद जी, आनंद जी, एक दुबे जी मिनट सब रखिए। नहीं, आप दो छोटी एक बात, दो अरे छोटी नहीं नहीं अमीक, आप एक बात मैं बताइए। महिलाओं के बारे में- अमीक नहीं, आप मैं महिलाओं नहीं के अमीक जी, बारे आप में- नहीं आप एक बात Do you बताइए। agree? आप एक मंत्रियों की बात बेटियां सुनिए अंग्रेजों को मैं आपसे दी जाती थी। मैं आपसे नरेंद्र मोदी का दोस्त बोलते हैं, करेक्ट। प्रधानमंत्री के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोलते हैं। हाँ। पूरे गुजरात में अच्छा, उसके छुरी बाद सड़क क्या हुआ? पे है। नहीं रुके पूरे गुजरात नहीं, में रुके सड़क पे रुके अच्छा अच्छा पूर्वांचल अब आप के दोनों माफिया, देखिए पूर्वांचल के माफिया, आवाज भारतीय जनता पार्टी में जो देखिए पार्टी है। अमीक जी, आनंद जी, आवाज मैं भी बुलंद कर सकता मैं पूछ रहा हूँ। हूं, मैं आपसे महिलाओं के बारे में ऐसी बात कहना चाहिए। आप जरा रुकिए, आप जरा रुकिए। मैं आपसे स्त्री महिलाओं के बारे में जो अमीक कहा जी गया सही है। एक Do you बात agree? में Do you agree? रुकिए, एक मैं बात पूछ रहा हूं, do you agree? मैं पूछा, मैं अपनी बात जो करूं, कहा गया कि वो मैं अंग्रेजों अपनी को बात मुगलों को करूं, दी जाती मैं अपनी थी। बात Do you करूं, agree? मैं अपनी बात करूं। देखिए, जैसे ही एक क्रिमिनल, एक गैंगस्टर को आप उसकी जाति या उसके धर्म से जोड़कर उसको प्रेजेंट करते हैं, यानी कि आप उसके तो क्राइम्स जतिन को प्रसाद को बोल- नहीं आप जतिन उसके प्रसाद से रुकिए जतिन प्रसाद आप ब्रह्म रुकिए बचाओ आंदोलन क्यों चला रहे थे? रुकिए आप उसके क्राइम्स को नॉर्मलाइज कर रहे हैं। आप एक क्रिमिनल के क्राइम को अगर नॉर्मलाइज कर रहे हैं, यानी कि आप कह रहे हैं क्योंकि वो एक समुदाय विशेष, जाति विशेष से था और वो मेरे फायदे का है, आनंद तो जी, मैं उसके मुझे- क्राइम्स को नजरअंदाज कर रहा हूं। दूसरी बात, ये सरकार दूसरी बात, हिंदुओं की सरकार नहीं है। दूसरी बात, ये सरकार दूसरी बात, कॉर्पोरेट्स की सरकार है। दूसरी- पूंजीपतियों की सरकार है। दूसरी बात, आतंकवादियों के लिए इनकी हमदर्दी दूसरी पूरे बात, देश ने देखी है। पुरुषोत्तम सोनिया रूपाला गांधी जी ने बाटला हाउस के आतंकवादियों के लिए रात भर पुरुषोत्तम आंसू रूपाला जी बहाती ने रही। जो कहा वो बिल्कुल निंदनीय है और उन्होंने गिर गिर के हाथ जोड़ के इसके लिए माफी भी मांगी और अपने वक्तव्य
को वापस सैम भी पेट्रोदा लिया है, को निकाल दिया गया। वक्तव्य सैम को पेट्रोदा वापस भी लिया गया, वक्तव्य को वापस भी लिया गया। इस्तीफा दिलाया गया। अच्छा, अब जरा वापस थोड़ा सा जब आप न्याय की बात किन होगी, आप तो बात होगी। नहीं, तो न्याय की बात मैं इनसे पूछ रहा हूं कि आप यहां पर लखनऊ में और उत्तर प्रदेश में रही हैं 2000 से 2014 के बीच में, और 2014 से लेकर 2024 के बीच में क्या लॉ एंड ऑर्डर में फर्क हुआ है कि नहीं? आप अपने आप को एज अ सिटीजन सेफ, पहले से सेफ महसूस करती है कि नहीं? एज अ सिटीजन ही बोल रही हूँ, और जहाँ यहाँ पे मैं पहली बात ये कहूंगी कि बेइंतहा इम्प्रूवमेंट है। आज महिला सेफ फील करती है अपने आप को, समाज सड़कों पे निकलती है, रात के 11 बजे भी आराम से घूम रही है, काफी हद तक सुधार है। लेकिन भाई साहब, आप लोग से एक बात कहना चाहूंगी, एक मिस्टर चौपाला क्या बोल देते हैं ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अपने ड्राइंग रूम में बैठ के क्या बोल देते हैं कि यहाँ पे बैठी जनता उनकी ओपिनियन बने। ये जनता इंपॉर्टेंट, ये जनता इंपॉर्टेंट है, उतना ही इंपॉर्टेंट ये जनता भी है। ये जनता भी बात महिला, मेरा भाई गलती हो जाती है, इनका समय कीमती है। बलात्कार के केस में मुलायम सिंह जी का बयान था, लड़के गलती हो जाती है। स्वतंत्र देव सिंह भाई वो लोग इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। सुनिए आप, अच्छा, अब ये बोल पूरी औरत मैं इज्जत करता अच्छा, हूं। मैं जोड़ ये बोल लें, उसके बाद आप बोले, मेरा ये कहना है जनता जो यहाँ है, यहाँ जो खड़ी है या जो सुन रही है, टीवी देख रही है, उनके लिए किसी इंडिविजुअल की ओपिनियन इतनी मैटर नहीं करती और नहीं करनी चाहिए। उनके लिए मैटर करता है उनका मुल्क, उनका देश, उनकी कंट्री, उनका अपना बच्चा जो स्कूल जा रहा है, उनका बदला, अपना बेटा जिसको नौकरी चाहिए। भाई साहब प्लीज बोलने दीजिए। अमित जी वो बोल रहे, मंच से खड़े होकर आप आप बोल लोग लीजिए। गालियां दे रहे हैं। आनंद जी नहीं, रुक देखिए, जाइए, आप दोनों के बोल चल रहे लें, हैं या आप चुप दोनों थी। की पार्टी के लिए मोहब्बत अलग चीज है, लेकिन यहाँ इंपॉर्टेंट है जनता के लिए मोहब्बत। जनता ही है जो वोट देगी, जनता ही है जो बताएगी क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि जनता अपनी आंखों से देख रही है। आप लोग ये मुद्दे उठा उठा के दिमाग भ्रष्ट करते हैं जनता का। जनता को ध्यान देना है देश की प्रोग्रेस पे, देश की। मेरी बेटी बाहर निकल रही है, सेफ है कि नहीं? मेरा बेटा कंट्री छोड़ के भाग तो नहीं जाएगा कि मम्मा कंट्री सेफ नहीं है, मैं जा रहा हूँ दुबई, मैं जा रहा हूँ अमेरिका। हमारा दिल टूट जाएगा। हमने पाला है अपने बच्चे को 20 साल 24 साल, भाई हमें ये देना है अपने बच्चों को। हमें ड्राइंग रूम में बैठ के ये वाहियात बातें नहीं करनी कि मिस्टर फला फला ने क्या बोल दिया। हु द हेल इज मिस्टर फला फला? उनकी ओपिनियन हमारे ड्राइंग रूम क्यों डिस्टर्ब कर रही है, हमारे डाइनिंग टेबल क्यों डिस्टर्ब कर? प्राइम मिनिस्टर ने भाई मुसलमानों को घुसपैठिया कहा। भाई आपने किसी जो ने ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं, आपको समाज से कोई दर्द है? पर उसी प्राइम आपको मिनिस्टर नहीं होगा, नहीं होगा, मुझे है उसी कि प्राइम मेरा देश मिनिस्टर का ने- प्रधानमंत्री उसी प्राइम देश मिनिस्टर की ने- सबसे बड़ी आबादी के बारे में, अच्छा, मुसलमानों उसी के बारे में ये प्राइम बात कर रहे हैं। उसी प्राइम देश का मिनिस्टर ने- प्रधानमंत्री, ठीक। और वो कह रहे हैं हाँ। गोली मारो आपको डैश बता दूं, डैश, प्रतापगढ़ गोली में- मारो डैश डैश। प्रतापगढ़ में डीएसपी जियाउल हक की हत्या कर दी गई, गोली मारी गई, और उसी हत्याकांड के आरोपी गुलशन यादव को अखिलेश यादव ने टिकट देकर चुनाव लड़ाया। अच्छा, ये है इनकी हकीकत। अच्छा, एक मिनट। अच्छा, अब इस लड़ाई में विवेक बंसल जी कांग्रेस कहाँ है? अच्छा, रुक जाइए। इस लड़ाई में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कहाँ है? और कांग्रेस के साथ समाजवादी पार्टी कहाँ है? अमेठी और रायबरेली में समाजवादी पार्टी कहाँ है? आनंद जी, मैं आपसे एक चीज कह दूं, लोकतंत्र की यही अद्भुतता है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी दैट पीपल एंड द रिजीम्स एंड द पॉलिटिकल पार्टीज कम एंड गो। आती हैं चुनाव में, कोई जीतता है कोई हारता है। अभी बात हो रही थी कि राहुल जी को खदेड़ दिया गया। माननीय अटल बिहारी जी वाजपेयी जी, जो एक बहुत बड़े नेता उस देश के और बहुत ही सम्मान्य प्रधानमंत्री माने जाते हैं, वो दो तीन बार हारे। तो ये लोकतंत्र की ये तो खूबसूरती है। तो मैं इस बात पे ये कहूंगा कि आज हो सकता है पिछले चुनावों में कांग्रेस नगण्य रही हो विधानसभा चुनाव में, पर आज मैं आपको आनंद जी विश्वास के साथ कह सकता हूं, मैं भी चुना हुआ विधायक, चुना हुआ एमएलसी वगैरह में रहा हूं, और मैं जनता से जुड़ा हुआ हूं, और अपने चुनावी अनुभव से 6 चुनाव लड़ा हुआ हूं। अपने अनुभव से कह सकता हूं कि आज उत्तर प्रदेश ही नहीं, भारत की जनता बदलाव मांग रही है, और वो बदलाव ऐसा होगा लोगों को अचंभित कर देगा। आई एम टेलिंग यू, यू वुड बी अमेज्ड एंड ज़ैप्ड कंप्लीटली once this results of this 24 elections come out on the 4th of June. Irrespective of what, I am not saying that I am a great cephalologist, but I am seeing a trend at the moment. And once you are asking about that, where the Gathbandhan So here is going, the thing, Vivek ji. Yeah. Let's take your argument on the face value
that there is an undercurrent, जनता बदलाव चाहती है, there is a big change that's happening. If there was a big change happening, you think that Rahul Gandhi and Priyanka Vadra would not have jointly contested both Amethi and Raebareli because they would have wanted to ride this undercurrent? And Akhilesh Yadav would not have taken such a long time to decide that he wants to fight in Kannauj? That a Samajwadi Party would not have, on the nth hour of nomination, changed its candidates 4 times across 6 districts, even ahead of the first phase of polling? Okay, if there was such a big undercurrent, sir, then why is the India Alliance not fighting all seats in Uttar Pradesh with the same gusto? Why is the India Alliance saying that we will not allow the BJP to win 62 seats like they won the last time around? They are not saying that we'll come back and return 56 seats. Is there really an undercurrent? And there's a difference between somebody going into a place and पहली बार चुनाव लड़ना. And there is a difference by saying कि हम हमेशा यहाँ चुनाव जीतते थे, अब की बार पिट गए भाई, हार गए और उसके बाद वापस नहीं आए वहां पर. There is a difference in that. जब आप अटल बिहारी जी का उदाहरण ले रहे हैं और उसको राहुल गांधी से कंपेयर कर रहे हैं, ये बहुत फर्क है दोनों में. जी फर्क नहीं है. देखिए आनंद जी, पहले तो आपको लेट मी जस्ट, you are saying, you are talking about that the undercurrent which which I am talking about, ki if they had not foreseen and why he was dithering or why did he sir, take... is the Congress party I'm just asking you, and I'll not interrupt please, you after this. I never is the Congress party interrupted. even fighting 450 seats? So, that's what I'm asking you across the country. So we have stitched and cobbled an alliance, so how can we possibly we have to take those phases. What we feel that the enemy of the nation, enemy of the constitution, enemy of democracy, we have to oust them. So our objective is very, very wide. We are looking at things at a wider perspective. And let me tell you about this undercurrent which you are talking about. Initially there was no undercurrent. People were talking about Ram Lala and all, that this wave would just sweep all the entire opposition. All of a sudden it has erupted. All of a sudden it has erupted and engulfed the entire nation. I'm telling you, in all earnestness and in all humility. So this has erupted after 4 phases, after more than 300 seats have been polled. By what I'm saying. No, so, are you saying that this has erupted after 4 phases, after 300 seats have been polled? No. After the first phase started, slowly and gradually it was coming, and then yes, don't laugh. Anand ji, you would yourself... No, you are... I'm just smiling because I don't have electoral knowledge, sir. You are the one who's fought elections, and if you are saying this, then I have to take it to the pitch. And let me say, on the 4th or 5th, we'll talk on the phone that what I was saying, have I been proved correct or not? Okay. आनंद जी देखिए, मैं थोड़ा सा वक्त लूंगा क्योंकि मुझे दूसरे प्रोग्राम कंटिन्यू करना है. बात बहुत साफ है कि देश के प्रधानमंत्री ने भारत के लोगों से जो वादा किया उसमें वो फेल्ड हुए, इसलिए वो चर्चा मुद्दों पे चुनाव पे नहीं कर रहे हैं, अनावश्यक चर्चा कर रहे हैं. 400 पार जो आजकल वो बोल रहे थे, 2 फेज के बाद वो 400 पार भी भूल गए हैं. नहीं, दूसरी बात, अरे पिछले 48 घंटे पहले से जो चौथे जमाई पिछले 48 घंटों में 48 बार प्रधानमंत्री ने 400 पार बोला. पहले से लेकर जो चौथा फेज है, नरेंद्र मोदी भारत का चुनाव लूज कर रहे हैं. इंडिया अलायंस ने तय किया सरकार बनते ही इस देश में पूरे मुल्क में जातिगत जनगणना कराई जाएगी और जितना जिसका हिस्सा है उसको हिस्सा मिलना है. तो प्रधानमंत्री की कुर्सी भी ऐसी होगी और प्रधानमंत्री की कुर्सी भी अगले 5 साल तक इंडी गठबंधन आएगा तो ऐसी होगी कि जिसकी जितनी सीटें उसका उतना टर्म. प्राइम मिनिस्टर साहब तो हर 6 महीने में प्रधानमंत्री बदलेगा देश का. प्राइम मिनिस्टर साहब की बात का मैं जवाब देना चाहता हूं. वो कह रहे हैं हर साल. नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप तो इंडिया अलायंस है ना, आप कह रहे हैं कि आप ऑल्टरनेटिव नैरेटिव मुझे दे रहे हैं, तो आप मुझे कह रहे हैं एज अ वोटर कि भाई अगर तुमने हमें वोट किया है और हम सरकार हम बना रहे हैं तो जिसकी जितनी संख्या भारी, तो यही प्रधानमंत्री की कुर्सी भी होगी कि हर 6 महीने में देश को नया प्रधानमंत्री मिलेगा. नहीं सर, हर देश हर 6 महीने में इंडी गठबंधन का कोई और प्रधानमंत्री चाहिए. हमें ऐसा प्रधानमंत्री नहीं चाहिए जिसके पीछे. तो कौन है इंडी गठबंधन का प्रधानमंत्री? अगर तो मुझे एज अ वोटर बताइए कौन है इंडी गठबंधन का प्रधानमंत्री? Who is the Prime Minister? Who is the Prime Minister of the India Alliance? Who is the Prime Minister of the India Alliance? Who is the Prime Minister of the... Can you tell me Amit Jamai? Can you tell me Amit Jamai? Can you tell the people present? यहाँ जितने लोग हैं, कोई चांस नहीं है. उनका वोट अभी पड़ा नहीं है. मैं कह रहा हूँ यहाँ जितने लोग हैं, यहाँ जितने लोग हैं, उनको आप ये बताइए कि अगर इंडी गठबंधन को वो वोट डालते हैं, चाहे वो सपा हो या कांग्रेस हो या जो भी इंडी गठबंधन से हो, अगर जहां भी उनका
का वोट पड़ता है, तो अगले 5 साल इनका प्रधानमंत्री कौन होगा? आनंद नरसिम्हा जी, मैं बहुत साफ बोल रहा हूं। कौन सी पार्टी डिसाइड करेगी? 10 सेकंड। तो 100 सीटों के साथ, नहीं, 100 सीटों के साथ, आनंद 100 10 सीटों के साथ अगर कोई पार्टी के पास 543 में से 100 सीटें हैं, उस पार्टी का नेता प्रधानमंत्री होगा। नहीं, मैं तो आप वापस भारत को उस काल में धकेलना चाहते हैं जहां एक पार्टी, एक एमपी वाली पार्टी सरकार बना रही है और तोड़ रही है। आप कह रहे हैं ये सही है भारत के लिए? नहीं, आप लोग कह रहे हैं ये सही है भारत के लिए? प्राइम मिनिस्टर थे। नहीं, मैं बस कह रहा हूं आप लोग सही है ये कह रहे हैं भारत के लिए, डेमोक्रेसी ऐसे जोड़ तोड़ के इधर उधर से 20, 22, 50, 60, 70, 80 ऐसे लोगों को बिठाओ और किसी के पास एक नंबर एक सीट होगी जिसकी वजह से सरकार बनेगी, वो बनाएगी। नहीं, मैं पूछ रहा हूं सर, मैं एज अ वोटर पूछ रहा हूं आपका प्लान क्या है? हमारा प्लान, आपका प्लान क्या है? एज अ वोटर आपका प्लान क्या है? आपका प्लान ये है कि आपस में लड़ेंगे और फिर उसको छिलेंगे? मैं पूछ रहा हूं आपसे, तो मेरे वोट का क्या मत रह गया कि आप मुझे बताएंगे कि देखो पहले वोट करो फिर देखते हैं क्या करेंगे? सवाल खत्म, फिर देखते हैं क्या करेंगे? सवाल खत्म। आपका प्लान क्या सवाल है? हो गया। हाँ, हमारा आप 5 साल में भारत को कहां से कहां ले जाएंगे? हमारा बताइए। प्लान ये है, हाँ। जो प्लान यूपीए 1 यूपीए 2 में था, हाँ, क्या यूपीए 1 में मनमोहन सिंह जी 4 बार बदले गए? हाँ। एक प्राइम मिनिस्टर थे जिन्होंने एनआरएजी नहीं, फैसला मनमोहन सिंह जी नहीं लेते थे सर, चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल एडवाइजरी कमेटी लेती थी। चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल एडवाइजरी कमेटी लेती थी वो यूपीए में। यूपीओ में पीएम कोई था, फैसले कोई और लेता था, फाइलें कोई और साइन होती थी। एनएसी किसने बनाई सर? एनएसी कब बनी? न्यूक्लियर एनएसी क्वाज़ी एग्जीक्यूटिव बॉडी कैसे बनी? वाइड द कॉन्स्टिट्यूशन। सर, आपका प्लान ये है, कि मेरी बहुमत की सरकार नहीं बन रही, जोड़ तोड़ की सरकार बन रही है। इस जोड़ तोड़ की सरकार में जैसे भी बटन टाके जाएंगे वैसे टाके जाएंगे। फटी हुई, सिली हुई, जुड़ी पुड़ी शर्ट पहननी है, वो अगले 7-5 साल तुमको पहननी है, ये आप मुझे बता रहे हैं। मोदी चुनाव हार रहे हैं, मोटी बात है। अरे उनकी सत्ता जा रही है। आप मुझे ये कह रहे हो कि वो चुनाव आ रहे हैं, आप ये नहीं कह रहे हो कि आप चुनाव कैसे जीत रहे हैं? अखिलेश यादव जी, आप मुझे ये बताओ कैसे जीत रहे हो चुनाव? क्या है? आप मुझे बताओ चुनाव कैसे जीत रहे हो? जवाब नरेंद्र मोदी के पास नहीं। आनंद दुबे, देखिए मैं एज एन एंकर नहीं पूछ रहा था, एज अ वोटर पूछ रहा था आपका प्लान क्या है? आप 272 सीटें कहां से जीत रहे हैं? वोटर की भाषा आप बोल रहे हैं, वोटर है। अरे मैं पूछ रहा हूं आप 272 सीटें कहां से जीत रहे हैं? एनडीए आप नहीं जानना चाहते कि 272 सीटें कहां से जीत रहे हैं? एनडीए 200 सीटों से आगे नहीं जा रहा है, मैं आपसे बता रहा हूं। अरे तो आप उत्तर प्रदेश में चारों फेज अगर में, अरे अमीक जमाई, मैं आपसे पूछ रहा हूं, ठीक है मान ली आपकी बात, ठीक है आप कह रहे हैं एनडीए को 200 सीट से ज्यादा, 543 सीटें हैं ना, यानी 342 सीटें जो हैं वो इंडी गठबंधन को मिल रही यूपीए वन में है। आप मुझे बस गिनती कराइए कि 342 सीटें आपको कहां से मिल रही प्रदेश हैं? में 60 सीटें तमिलनाडु से शुरू करिए। आप पार्टी लूज कर रही है। तमिलनाडु से शुरू कीजिए, फिर आप फोटो आइए गायब है। तमिलनाडु से, फोटो केरला गायब से, है। कर्नाटक से शुरू करिए आप। अच्छा आनंद दुबे बताइए, फोटो है, एक फोटो गायब है। आप उत्तर प्रदेश में 2 सीटें जीत रहे हैं। नहीं देखिए अखिलेश आप उत्तर प्रदेश में 2, क्यों पिछली बार 62 थे, अभी ये कह रहे हैं 60 आप हार रहे हैं। हाँ मैं बता ठीक रहा है। हूं आपको। देखिए एक होती है गलत तो ये 342 कहां से जीतेंगे बताइए? गणित सुन लीजिए मुझे जी। एक होती है गलतफहमी, एक होती है खुशफहमी, और जब दोनों मिल के किसी के सर पे चढ़ जाए तो वो कौन सी फहमी बनती है वो आप इन लोगों को देख के समझ सकते हैं। अखिलेश यादव जी ने 2022 के विधानसभा चुनाव में क्या कहा था आपको याद होगा? 400 सीट हम जीतेंगे। उन्होंने कहा था 400 सीट जीतेंगे, बाकी में लोग अपना समझ ले। दरअसल ये चलता रहेगा, ये जिसकी बात कर रहे हैं ना, ये 4 जून तक सुबह तक कहेंगे हम जीत रहे हैं। सुन लीजिए 4 जून की सुबह तक कहेंगे हम जीत रहे हैं, उसके बाद 10 बजते बजते कहेंगे अभी तो 3 ही राउंड की काउंटिंग हुई है, थोड़ा इंतजार करिए। दोपहर होते होते ईवीएम पे सवाल उठाएंगे, चुनाव आयोग पे सवाल उठाएंगे, और 5 बजते बजते खोजने से नहीं मिलेंगे डिबेट के लिए। फिर अभी से इनका तो नाम आनंद जी मैं पता, आपसे इनको पूछ रहा बैठा के रख लीजिए। सुन लीजिए और सुन लीजिए। अगर आप 400 पार नहीं हुए और 330 पे आकर लड़ गए तो आप इलेक्शन जीते कि हारे? नहीं देखिए जनता का जो, अगर आप 400 पार नहीं हुए, 330 पे आकर रुके, सो डिड यू विन द इलेक्शन और लूज द इलेक्शन? बिकॉज यू सेट द बेंचमार्क। देखिए जनता का जो फैसला होगा भारतीय जनता पार्टी हाथ जोड़ के उसको स्वीकार करेगी, लेकिन हम 400 होंगे पार और 4 जून को इंडी गठबंधन में होगी हाहाकार। हम होंगे 400 पार, इनके यहाँ होगी जूतम पैजार। और सुन लीजिए जो अभी कह रहे हैं हम 7-7 हैं, 4 जून को कहेंगे हम 7-8 हैं।
जो 7-7 हैं कह रहे हैं, ये कहेंगे हम 7-8 हैं। और एक चीज आपके लिए कह दूं साहब कि कुछ होश भी है। ये दस्ते जुनू देख क्या हुआ, दामन तक आ गया है गरेबा फटा हुआ। आओ असीम अब तो यही मशगला करे, एक रोए और दूसरा पूछे कि क्या हुआ। देश की स्थिति वही होने वाली है, एक रोएगा दूसरा पूछेगा क्या हुआ। देश की किस्मत फटी है, मेरी फट जाए तो क्या दिक्कत है। देश के 80 करोड़ लोग जब राशनों की लाइन में खड़े हों, देखिए और प्रधानमंत्री किस्मत बहुत दिन अच्छी में है, 4-4 जोड़ी कपड़े बदले, लेकिन देश में जवाब न दे। व्यापार का उनकी दुकानें बंद हो गई हैं। बदाल घूम जो रहा है लोग रोजगार राजनीति को को लेकर। व्यापार बना रहे थे वो Now, बेरोजगार होकर घूम रहे हैं। we've got to wind up. Shamika ji, I want to ask you, you've heard the political parties. You have a particular point of view. Let me ask you this. Today, who do you think has a plan for you and for the people of this country? Or are you looking at everybody and saying, I don't even know who to vote for? No, not at all. My things are very clear. First of all, let me tell you, whichever political party you are telling, Mr. Dubey, kindly एक बात समझिए कि अगर कोई पार्टी या कोई भी गवर्नमेंट अपनी जनता के लिए कुछ कर रही है तो वो एहसान नहीं कर रही है, उसकी ड्यूटी है। तो अगर वो कुछ प्रोवाइड कर रही है, ये दिया वो दिया ये दिया वो दिया, तो उसकी ड्यूटी उसे करना है, अच्छे से अच्छा करना है, तभी अच्छा रिजल्ट आएगा। और दूसरी चीज ये कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का इतना महत्व नहीं है जितना हमारे मुल्क का महत्व है, जितना हमारे कंट्री का महत्व है। कंट्री को लेके आगे जाना है। आज हम ग्लोबल लेवल पे बात करते हैं, कोई बात करते हैं ग्लोबल लेवल पे करते हैं। अब मुल्क से सरहदों में नहीं रह गया है, मुल्क बढ़ गया है, पूरे विश्व तक चला गया है। और हम ये मोहल्लों की लड़ाइयां और जाति की लड़ाइयां इन्हीं से आगे नहीं बढ़ रहे हैं। हम तो कहते हैं इन चीजों को आप लोग प्लीज मीडिया वाले मुद्दा बनाया ही ना करिए कि इस जाति ने ये कह दिया, छतरी ने ये कह दिया, मुस्लिम ने ये कह दिया। इनको मुद्दा ही ना बनाइए, मुद्दा बनाइए आप, मुद्दा बनाइए। आप क्यों कह रहे हैं? आप उनकी 25 मिनट की आप उनकी स्पीच को 25 मिनट की स्पीच में आपने 2 शब्द उठा लिए, उन्हीं को गाए जा रहे हैं। अरे आप जनता का समय को फालतू समझते हैं क्या? पिछड़ा हूं। जनता जो है, जनता इंपॉर्टेंट है। जनता को आगे बढ़ना है, जनता को अपने घर को आगे बढ़ाना है, उसको अपने फाइनेंसेस अच्छे करने हैं, उसको दूसरे मुल्कों की तरह हमारे मुल्क को भी आगे बढ़ना है। हम कब तक ये हिंदू मुस्लिम और छतरी ब्राह्मण में लड़ते रहेंगे? हमें आगे बढ़ना है, हमारे बच्चों को आगे बढ़ना है। इस पे ध्यान दीजिए, महिलाओं को सुरक्षित रखिए, महिलाओं को आगे बढ़ाइए। आप लोग आपस में लड़ने लगते हैं। Why do you take it personal? Don't take it personal, please sir. इसमें आज आप इस पार्टी में, कल को आप दूसरी पार्टी में कूद के पहुंच जाएंगे। पॉलिटिकल बीजेपी में नहीं, प्लीज इस तरह की बातें ना कीजिए। आप लोग सिर्फ जनता को तवज्जो Those who are दीजिए। part of a political party also have to do their dharma as political party members. So I've got to thank all our panelists for joining us here on this very engaging conversation here in Lucknow. Thank you very, very much. Winding up on that note, most important is go and cast your vote. Go vote is a campaign here at CNN News 18, and we're going to wind up on that request. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you.